अस्सलामुअलैकुम। बयान भी सुने मगर मुफ्ती हनीफ साहब जड़ा मांगरोल बयानात ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी घंटे के बटन को भी दबा दे और हाँ, लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊदु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وسلم تسليما كثيرا كثيرا قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الرسول فقد أطاع الله وقال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال الله تبارك وتعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة ولهم عذاب مهين وقال تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين۔ واجب الاحترام بزرگ اور دینی بھائیوں، آپ حضرات کی خدمت میں قرآن مقدس کے الگ الگ مقامات کے آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دو حدیثیں پڑھ کر کے سنائی ہیں۔ کل گزشتہ نماز جمعہ سے قبل اسی عنوان سے چند باتیں مختصر انداز میں ذکر کی تھی، چونکہ زیارت کی مجلس میں گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ کلام کرنا پڑتا ہے، تو ان آیات اور احادیث کو مفصل طور پر آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ اللہ عز و جل یہ منعم حقیقی ہے۔ اللہ عز و جل جمیع مخلوقات کا خالق اور مالک ہے۔ وہ اکیلا ہے، وہ تنہا ہے، وہ وحدہ لا شریک لہ ہے، اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہیں۔ ہم لوگ وجود میں ماں باپ کے محتاج ہیں، ماں باپ اپنے ماں باپ کے محتاج ہیں۔ اللہ ولادت سے پاک ہے، اللہ وفات سے پاک ہے، اللہ تمام تر کائنات عالم کا نظام سنبھالے ہوئے ہیں، حی قیوم، وہ زندہ ہے، کائنات عالم کا نظام سنبھالے ہوئے ہیں۔ خداوند قدوس نے اپنی مخلوق میں سے سب سے برگزیدہ ذوات انسان منتخب کیے ہیں۔ بے شمار اللہ کی مخلوق ہیں، انسان، جنات، ملائک، حیوانات، کروڑ ہاں کروڑ، ارب ہاں ارب اللہ کی مخلوقات ہیں، یعنی اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں جتنی زمین کے اوپر ہیں اس سے زیادہ سمندر کے اندر ہے۔
جتنی مخلوقات زمین کے اوپر ہے اس سے زیادہ مخلوقات سمندر کے اندر ہے. سمندری انسان بھی ہے، سمندر میں جنات بھی ہے، سمندر میں پالتو جانور بھی ہے، سمندر میں پھاڑ کھانے والے جانور بھی ہیں، سمندر میں زہریلے جانور بھی ہے، سمندر میں حشرات الارض بھی ہے. 18,000 عالم ہے. الحمدللہ رب العالمین. 18,000 عالم، اور ہر عالم کی جداگانہ مخلوقات. کیا قادر مطلق اللہ ذوالجلال والعزت نے ان مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے. لیکن سب سے اشرف، سب سے افضل اور کل کائنات کا مخدوم اللہ نے انسان بنایا. اور انسانوں میں سے سب سے مقدس طبقہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسولوں کا بنایا، جو پوری کائنات کی تمام تر مخلوقات میں، چاہے وہ بری ہو یا بحری ہو یا جوی ہو. بری مخلوق یعنی زمینی مخلوقات، بحری مخلوق یعنی دریائی مخلوقات، جوی مخلوق یعنی فضائی مخلوقات. اللہ کیسا قادر مطلق ہے کہ سمندر کے پانی میں مخلوق پیدا کرتا ہے، اور سمندر کا پانی ان کا جیون ہے، اور سمندر کے پانی میں یہ مرتے ہیں. اور زمینی مخلوقات کے مقابلے میں بحری مخلوقات بہت زیادہ، لیکن کبھی دریا کا پانی سڑتا نہیں ہے، کبھی دریا کا پانی بدبودار نہیں ہوتا، کبھی مچھلی کو زہر نہیں لگتا. اس لیے فقہ اسلامی میں سمندر میں سے مچھلی حلال، باقی سب حرام. جاندار چیزوں میں سے سمندر میں مچھلی حلال، باقی سب حرام. ہاں موتی، مونگے، ہیرے، جواہرات یہ سمندر میں حلال، لیکن وہ کھانے کی قابل سے نہیں ہے. اچھا، دریا جو ہیرے، جواہرات اور موتی اور مونگے پیدا کرتا ہے وہ زمین نہیں پیدا کرتی. اور قدرت کا عجیب نظام ہے. یہ سب قرآن میں ہے. کیسا نظام ہے؟ قیمتی سے قیمتی سیپی، قیمتی سے قیمتی موتی، قیمتی سے قیمتی ہیرے، لال و یاقوت دریا میں پیدا ہوتے ہیں. اور قدرت کا نظام کیا ہے؟ جب چوماسا بیٹھتا ہے تو سمندر اندر طغیانی خدا پیدا کرتا ہے، جوش پیدا کرتا ہے، اور وہ پانی کی لپیٹوں کے ساتھ سانکلے باہر آتے ہیں، اور یہ سانکلے خدا اپنی قدرت سے پھاڑتا ہے، اور اس کا منہ کھلتا ہے. اور ہر سیزن کی پہلی بارش میں وہ پانی کا قطرہ اس سیپی میں داخل ہوتا ہے، اور انتہائی پیک کور اس کا ہوتا ہے، جیسے کوڈی ہوتی ہے، کوڈی ایک دم مضبوط کور. اللہ اپنی کمال قدرت سے اس سانکلے جیسی بے جان چیز میں اللہ عز و جل اس آسمان کے پانی کو جو آسمان سے اترا ہے، اس کو سمندر کی سیپی میں اس سانکلے کے منہ میں خدا داخل کرتا ہے، اور خدا اپنی قدرت سے اس سیپی کا منہ بند کرتا ہے. اور اس کو بند کرنے کے بعد اللہ پھر طغیانی سمندر میں پیدا کرتا ہے. ایک سمندر کی موج نے اس سانکلے کو باہر پھینکا، اور خداوند قدوس نے گرمی کی حرارت سے اس کو پھاڑا. وہی اللہ اپنی کمال قدرت سے اس سانکلے کو سمندر میں طغیانی پیدا کر کے کنارے سے واپس اندر کھینچتا ہے، اور اندر لے جانے کے بعد خداوند قدوس اس کھروے اور کھارے پانی میں اپنی قدرت سے لولو، یاقوت، موتی اور مونگے پیدا کرتا ہے. یہ اللہ کا نظام ہے. اس کا بیان سورہ رحمان میں ہے. یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان. سورہ رحمان پڑھتے ہیں. پہلے زمانے میں ہمارے پرانے لوگ امام صاحب سورہ رحمان پڑھے تو بہت خوش ہو جاتے، ایک عجیب لطف آتا تھا. اب تو امام صاحب بھی نہیں پڑھتے ہیں الا ماشاءاللہ، اور ہمارے بڑے لوگوں کو اس کو سننے میں بہت لطف آتا تھا. کیوں؟ نعمت کے سننے میں بھی مزہ آوے، مصیبت کے سننے کے اندر بھی نفرت ہوئے. اور اس میں نعمتیں بہت بیان کی ہیں.
इसमें एक नेमत ये है, यखरुजु मिनहुमुल लुअलु वल मरजान, अल्लाह ने दो दरिये बहाए हैं, एक मीठे पानी का दरिया जिसको नदी कहते हैं, एक खारे पानी का दरिया जिसको समंदर कहते हैं। मीठे पानी के दरिये की अलग खुसूसियत है, इसलिए मीठे पानी की मछली का स्वाद अलग, खारे पानी की मछली का स्वाद अलग। मीठा पानी सड़ाने वाला है, खारा पानी सड़ता नहीं है। मीठे पानी का लुत्फ अलग है और इसमें पैदावार का लुत्फ अलग है, खारे पानी की पैदावार का लुत्फ अलग है। ये सब कुछ करने धरने वाली ज़ात एक अकेले अल्लाह वहदहु ला शरीक लहू की है। खैर बात तो इस पर चल पड़ी, एक बर्री मखलूक है, एक बाहरी मखलूक है और एक जवी मखलूक है। इसीलिए फ़िक़्ह इस्लामी का मसला रह जाएगा अधूरा। वो ये है कि जो चीज़ समंदर में पैदा हो और जो चीज़ समंदर में पले बसे और समंदर के पानी ही में मर जाए, पैदा भी वही हो, मरे भी उसी में, और वो मछली हो, तो इसका खाना हलाल। बाकी समंदर की किसी चीज़ को नहीं खा सकते। अच्छा, मछली किसे कहते हैं? इसलिए कि लोग करटले को भी मछली कहते हैं, खागड़े को भी मछली कहते हैं, समंदर के बहुत से जानवर भी मछली जैसे होते हैं। तो मछली किसे कहते हैं? तो उसकी तारीफ फ़िक़्ह में ये लिखी गई, जो गलफड़ों से सांस ले, पानी में पैदा हो और पानी में जीवन गुजारे और पानी के बगैर जिंदा न रह सके और पानी में मर जाए, इसको मछली कहते हैं। इसका खाना हलाल है। तो अब इसमें करचले अलग हो गए, इसलिए कि वो बाहर पैदा होते हैं, पत्थरों में रहते हैं। इसी के साथ साथ वो फिर मछली की जिन्स से भी हो, उसकी कबील से हो, और अगली मशकसूदा कौमों की सूरत में न हो। जैसे बिच्छू होता है तो ये शक्ल में बिच्छू जैसा है, तो उसकी शक्ल की भी रियायत की जाती है। इमामुल अंबिया ताजदार मदीना, हम सब के आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्तरखान पर गो बना करके भून करके रखी गई। हज़रत सहाबा भी खाने में शामिल है। जब गो दस्तरखान पर रखी गई, दस्तरखान बिछाया गया, नेमतें रखी गई, तो खाने के लिए आदमी हाथ बढ़ाता है। आपका हाथ गया और आपने खींच लिया। तो सहाबाए किराम आका के खाने से पहले खाना शुरू नहीं करते थे, किसी ने खाना शुरू नहीं किया। जब नबी ने हाथ खींच लिया, लेकिन साहबा ने फ़ौरन पूछ लिया कि आवू क्यों, यानी आपने क्यों नहीं खाया, आपने क्यों वापस हाथ खींच लिया? तो आका ने एक जवाब ये दिया, अन्नहा लैसत बिअर्दि कौमी, ये जानवर हमारी कौम की ज़मीन में नहीं है, यानी अरबों में गो नहीं होती है। आका ने फरमाया, अब तक अल्लाह ने इसके बाबत कोई हुक्म भी नहीं उतारा है कि हलाल है कि हराम, लेकिन हमारी कौम की ज़मीन की नहीं है। आका ने नहीं खाई और आका के दस्तरखान पर नहीं खाई गई। ये हशरातुल अर्द के मुशाबे हैं और हशरातुल अर्द खबीस है। दो चीज़ों से हुर्मत आती है, एक खबासत से हराम होता है, एक नजासत से हराम होता है। तो ये खबीस जानवर है और खबीस जानवर खाया नहीं जाता है। और एक नजीस चीज़ होती है नापाक, नापाक की खाई नहीं जाती है और नजासत नहीं खाई जाती। जो चीज़ खबीस होती है वो भी खाई नहीं जाती। तो कुछ जवी मखलूक़ात है फ़िज़ाई, जो फ़िज़ाओं में पैदा होती है, फ़िज़ाओं में परवान चढ़ती है और फ़िज़ाओं में मर जाती है। तमाम तर मखलूक़ात में अल्लाह ताला ने एक वाहिद ज़ात अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की और रसूलों की बनाई, जो सबसे अफजल हैं, सबसे अशरफ हैं, सबसे आला और बरतर और बाला है। और अल्लाह ने अंबिया के हुकूक बयान किए कि कौमों को नबियों पर ईमान लाना फ़र्ज़, कौमों को नबियों की तालीमात को अपनाना फ़र्ज़, कौमों को नबियों की बात का मानना फ़र्ज़, और जो नबी पर ईमान न लाए वो काफिर और बागी करार दे दिया गया। सिलसिलाए नबूवत की पहली कड़ी आदम है और आखिरी कड़ी खातिमुल अंबिया वल मुरसलीन, हम सब के आका ताजदार मदीना जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है।
अच्छा, पहली नबूवत का फर्द आदम से लेकर के आका तक 7,500 बरस में 1,28,000 नबी और 313 रसूल पूरे हो गए। आप खातिमुल अंबिया वल मुरसलीन हैं। तमाम अंबिया और तमाम रसूलों के खत्म के सिलसिले पर है। हर नबी पर एक ईमान लाना वाजिब कि वो अल्लाह का नबी हैं, वो अल्लाह का रसूल हैं, उनकी कौम की हिदायत के लिए अल्लाह ने भेजा था। और आका पर 2 ईमान लाने वाजिब कि आका नबी हैं, रसूल हैं और खातिमुल अंबिया वल मुरसलीन हैं। यानी आपके बाद अब क़यामत तक कोई नया नबी और रसूल आने वाला नहीं। जो नबूवत का दावा करे वो कद्दाब है, वो दज्जाल है, वो झूठा है, दज्जाल है, उसकी बात को नहीं माना जाएगा। इन नबियों के हुकूक बयान किए कि उम्मत को कहा नबी पर ईमान ले आओ, उम्मत को तालीम दी नबी के अहकामात पर अमल करो, नबी की अज़मत दिल में बिठाओ, नबी की ताबेदारी करो और नबी की इताअत वाली ज़िंदगी गुजारो। इसी उसूल और ज़ाब्ते पर हज़रत ईसा के बाद 570 बरस गुजर चुके कि इमामुल अंबिया ताजदार मदीना हम सब के आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने नबी मबूस फरमाया। दरमियान में 570 बरस तक ईसा के बाद आका तक कोई नया नबी नहीं था। बस ईसा आखिरी, आका से पहले के एतबार से, और दरमियान में कोई नबी नहीं। और खातिमुल अंबिया वल मुरसलीन हम सब के आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम की ज़ात को अल्लाह ने नबी मबूस फरमाया। हर नबी के हक़ हैं उम्मत पर। आका के बुनियादी 3 हक़ हैं। एक, आका से मोहब्बत रखी जाए। दूसरा, नबी की अज़मत दिल में पैदा की जाए। और तीसरा, मोहब्बत और अज़मत के साथ नबी की ताबेदारी वाली ज़िंदगी गुजारी जाए। 3 बुनियादी हक़ है। इसी पर मुख्तसरन चंद बातें आप हज़रात की खिदमत में पेश करनी है। अल्लाह ताला ने अपने मुक़द्दस कलाम में अपने पैगंबर के बाबत सूरह हुजुरात पूरी उतारी और फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदैहिल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह। नबी से चलने में आगे मत बढ़ो, नबी की बात के आगे बात मत करो, नबी के काम से पहले काम मत करो। जिस काम में नबी शरीक हैं उस काम में नबी के फ़ेल पर अपना फ़ेल आगे मत करो। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के साथ सब काम किए हैं। अब तरतीब बदल गई है। कौम का मुक्तना ऑर्डर चलाता है और मुक्तदी लोग उसकी इत्तिबा में काम करते हैं। ये कामयाब नहीं है। कामयाब वो है कि मुक्तना पहल करे काम में तो मुक्तदी भी काम करे, यानी दोनों मिलकर काम करे। सन हिजरी 4 है या सन हिजरी 5 शुरू हो चुकी। मदीना मुनव्वरा से चंद मील के फासले पर मुशरिकीन मक्का से 3,000 का लश्कर लेकर 6,000 दूसरे कबाइल मिलकर 10,000 के लश्कर जर्रार का एक बार भी मदीना मुनव्वरा पर हमला करने का फैसला होता है। सन हिजरी 4 ख़त्म हो गई थी, सन हिजरी 5 शुरू हो चुकी थी या सन हिजरी 4 ही चल रही थी। यानी आका मक्के से जो मदीना तशरीफ़ लाए उसको ये 4था साल था, जिसमें मक्का के मुशरिक, यहूद का कबीला बनु गितफान, यहूद का कबीला बनु नज़ीर और दूसरे कबाइल यहूद और मुनाफिकीन, यानी बाहर की दुश्मन की ताकत और अंदर की दुश्मन की ताकतें मुत्तफिक हो गई थी। और ये बनु गितफान और बनु नज़ीर मदीने से मक्के गए थे और बैतुल्लाह के पर्दे पकड़कर मक्का के मुशरिकों के साथ कसमें खाई थी कि जब तक मोहम्मद और रसूलुल्लाह और उनके साथियों का सफाया नहीं कर देंगे तब तक हम दम नहीं लेंगे। अजीब अल्लाह की कुदरत। फिर भी अल्लाह अपने दुश्मनों को चला रहा था। अल्लाह कितनी बड़ी ज़बरदस्त ताकत के मालिक। घर अल्लाह का, काबा अल्लाह का, दुश्मन दाखिल हो रहे हैं और अल्लाह के दोस्तों को फना करने के लिए मशवरे कर रहे हैं और काबे के पर्दे से चिमट चिमट करके दुआएं कर रहे हैं और कह रहे हैं, कसमें खा रहे हैं कि इनका सफाया करेंगे। 3,000 वो
7,000 दरमियान में से और मदीने के अंदर से 10,000 का लश्कर जर्रार मुकाबले के लिए जब मदीना पर एक बार की हमला आवर हो रहा है, आका साहबा से मशवरा करते हैं। इसलिए मशवरा सुन्नत है। घर में भी कोई काम करे तो औलाद और बहू बेटियों के दरमियान में मुज़ाकरा करना चाहिए, इसलिए कि हर एक की अक्लें मुतफर्रिक हैं और सबकी सलाहियतें जुदागाना हैं। जब सारी सलाहियतें मुज्तमे हो जाएगी तो घर मजबूत बनेगा, माशरा मजबूत बनेगा, कुंबा कबीला मजबूत बनेगा। हर एक में खुदा ने सलाहियत दी है और हर एक की सलाहियत इस्तेमाल हो रही है। जब सारी सलाहियतें मुज्तमे हो जाएगी तो फिर वो घर परवान चढ़ेगा, वो माशरा परवान चढ़ेगा, वो समाज परवान चढ़ेगा। अब मामला बहुत खतरनाक था, पूरा कुफ्र मुज्तमे था, इसीलिए कुरान ने उस गज़वे को गज़वा अहज़ाब कहा। अहज़ाब, बहुत सारी पार्टियां जमा होकर आका पर हमला आवर होने के लिए, मदीना का सफाया करने के लिए एक हुई थी। हजरत सलमान फारसी से मशवरे में ये तय किया कि खाई खोदो खाई, इसलिए कि ये फारस के रहने वाले थे और रूम और फारस में मुद्दत दराज से लड़ाई होती चली आई। कभी रूमी जीतते थे, कभी फारसी जीतते थे, कभी फारसी जीतते थे, कभी रूमी जीतते थे, और ये फारस के रहने वाले थे। सलमान फारसी सहाबाई किराम में बड़े ऊंचे तबके के सहाबी थे। इस्लाम के वो जज रहे, यहूदियत के भी जज रहे थे और ईसाइयत के भी जज रहे थे। दुनिया के 3 मज़ाहिब में बैरिस्टरी हासिल कर ली थी। ये मामूली काम नहीं है, अपने मजहब की बातों में बैरिस्टरी हासिल कर ले, जज बन जाए। जैसे आज एक आलिम होता है, एक मुफ्ती होता है, एक काजी होता है। काजी कहते हैं बैरिस्टर को, काजी कहा जाता है जस्टिस ऑफ इस्लाम को, जो इस्लाम का फैसला दे। ममालिक इस्लामिया में ये एक ओहदा है और उस पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद की जाती है। काजी का काम अहकाम को नाफिज कराना है, वो फैसला देगा और सल्तनत इस्लामी इस फैसले को अमली रूप देगी, और अगर इसके खिलाफ करे तो वो आदमी काफिर है। और मुफ्ती और या मौलवी मसला बता दे, अगर उस पर अमल न करे तो उससे कुफ्र लाजिम नहीं आता। दोनों की हुदूद अलग अलग हैं और दोनों की तारीफें अलग अलग हैं। खैर, सलमान फारसी जस्टिस ऑफ इस्लाम भी, यानी इस्लाम का भी लंबा मुताला, और फारस और रोम, ईसाइयत और यहूदियत के भी, ये इस्लाम जब लाए हैं मदीना मुनव्वरा हाजिर हुए, इस्लाम ले आए, लेकिन पहले 3 चीज़ों का इम्तिहान किया। उन्होंने पढ़ा था तौरात में, ज़बूर में, नबी आखिरुज़्ज़मान, हम सब के आका, ताजदार मदीना, हबीब खुदा हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिफ़ात 100 सहीफ़ों में, तौरात में, ज़बूर में, इंजील में अल्लाह ने बयान किए थे कि नबी आखिरुज़्ज़मान कैसा होगा। 100 सहीफ़ों में बयान, तीनों आसमानी किताबों में बयान आ गया था, कुरान में भी बयान आ गया। तो तौरात में पढ़ा था, ज़बूर में पढ़ा था 3 बातें खास, जो तौरात में भी हैं, जो ज़बूर में भी हैं और इस्लाम में भी हैं, कि जो नबी आखिरुज़्ज़मान होगा उसके नबी होने की निशानी ये होगी कि वो हदिया लोगों का कबूल कर लेगा, सदका कबूल नहीं करेगा। और यहाँ महर नबूवत है दोनों मोहरों के बीच में, और उस पर लिखा हुआ है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ध्यान से सुनना, हजरत सलमान फारसी ने तौरात में पढ़ा था, ज़बूर में पढ़ा था, 100 सहीफ़ों में ये बात आ गई थी कि जो नबी आखिरुज़्ज़मान हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबऊस होंगे, वो मक्का मुकर्रमा में पैदा होंगे और नखलिस्तान वाले शहर में हिजरत करेंगे। नखलिस्तान यानी खजूर के बागात वाले शहर में हिजरत करेंगे। पता था मक्के में पैदा हुई, मदीने में हिजरत की, और 3 बातें बतौर ख़ास, हदिया देंगे तो कबूल कर लेंगे, सदका देंगे तो कबूल नहीं करेंगे, और दोनों मोहरों के बीच में महर नबूवत होगी।
सलमान फारसी आए फारस से हिजरत करके मदीना, आका को माल पेश किया कि यह हदिया है। आका ने कबूल कर लिया, हदिया था, कबूल फरमा लिया। देखिए हदिये का उसूल ये है, तहादौ व तहब्बु, हदिया लो और दो, इससे मोहब्बत पैदा होगी। हदिये में छोटी सी भी चीज़ पेश कर सकते हैं, बड़ी भी चीज़ पेश कर सकते हैं। हमारे समाज में जब ईदी चलती थी, ईदी, तो न्याणी के भाने चलते थे, ये हदिया था। कान खोल करके सुने, ये हदिया था, हदिया। आज के जवानों को ये लफ्ज़ भी समझ में नहीं आते, उनको तो ओपरे लगते हैं कि वरी न्याणी अटले शू, इन्हें ही खबर ना पड़े, ने भाणा अटले शू, इन्हें ही खबर ना पड़े। एक मोहब्बत थी, यानी भाई अपनी बहन को बदांगे बुबुल ये कह रहा था कि मेरी बहन, तू और मैं एक माँ बाप से जन्म लिए हैं, तू सिन पे नाजुक है, तू कमज़ोर है, मैं ताकतवर हूँ, हो सकता है तेरे घर में, ससुराल में, तेरे शौहर के यहाँ ईदी के इंतज़ामात हो न हो, मैं तेरा भाई हूँ, पहले तेरी ईद बाद में मेरी ईद। इसको कहते हैं न्याणी नु भाणु ईद माँ ने, वो ईदी होती थी। और इसमें जाता था क्या, इसमें जाता था घी, इसमें जाती थी सेवियम, उसमें खान, ये सारी चीज़ें। वो ज़माना हमने भी देखा है, चूँकि मेरी उम्र भी 52 साल की हो गई है, इसलिए मैंने भी वो देखा है। और उन बुज़ुर्गों से मेरी निस्बतें रही है जो हमारी इस तरह अपनी औलाद की तरह तरबियत करते थे। और मैंने ज़ियारत के अंदर जब बयान किए थे तो हमारे बड़े बुज़ुर्ग लोग थे, उमर बापा औलाद थे, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे, दाऊद बापा जेठवा थे। तो बयान के बाद एक तरफ बैठकर पीठ थापते थे और चंद बातें नसीहत की करते थे। खैर वो कब्रों में चले गए, इनसे कुछ सीखना फ़ायदेमंद हुआ। वो ज़माना खा चुके थे, जैसे ये बड़े बूढ़े ज़माना खाए हुए हैं, इसलिए उनको पता है कि क्या होता है हालात और क्या होते हैं हवादिसात। तो ये ईद होती थी, ईद न्याणी के भाणे। इसमें बहुत हिकमत और मसलिहत है, बहुत हिकमत और मसलिहत। अभी परसों की मुफ्ती अब्दुल्ला साहब ने सुनाया कि मांगरोल में 2 जमात थी, छोटी जमात, बड़ी जमात। तब बड़ी जमात के अंदर ये रिवाज नहीं थे तो कोई दीन सुनता भी नहीं था। फिर हज़रत मुफ्ती साहब इब्राहिम साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू के वक्त से अनवान दिए गए और बात समझाने के लिए ज़ियारतों की मजलिसों के अंदर एक माहौल बना। तो मैं इस पर अर्ज़ कर रहा था कि हज़रत सलमान फारसी ने यह पढ़ा कि नबी 3 बातें इसमें देखने की है। ये हदिया कबूल करता है, छोटी चीज़ भी पेश करो, बड़ी चीज़ भी पेश करो, हदिया लेते देते रहो, इससे मोहब्बत पैदा होगी। लेकिन व्यवहार नहीं, दोनों में फ़र्क है। व्यवहार मना है, ये कर्जा है, कर्जा, और हदिया ये गिफ्ट है, दोनों में फ़र्क समझ लो। शादी हुई, आपने बहन को, बहन के औलाद को दे दिया, लेकिन भूल गए, इन्हें चोपड़ा ना चितराई। अगर उसके चोपड़े चितर लिए तो ये कर्जा हो गया और फिर इस पर शरीयत के अंदर रोक लगेगी। चूँकि खामोखा ज़बरदस्ती किसी को मकरूज बनाना और वो दे सके न दे सके, ये कर्जा चुका सके न चुका सके, तो उसकी कब्र खराब हो। इसलिए मसला ये कि भाई व्यवहार मत दो, हदिया दो, जितना भी देना हो दे दो, और उसको लिखाई मत करो, राजी खुशी से दे दो। हमारे यहाँ तो माहौल है, हम देहातों में जब जाते हैं तो एक आदमी का इंतकाल हो गया, तो जितने लोग ताज़ियत के लिए आते थे मैयत के गुस्ल देने से पहले, तो सिरहाने 10 रुपये 20 रुपये 10 रुपये 20 रुपये सब रखते थे। तो मुझे तो समझ में नहीं आया, वो गुस्ल देने के लिए मैं गया तो पहली मर्तबा ज़िंदगी में देखा कि सिरहाने पैसे कैसे। तो इस गांव का, इस बिरादरी का एक नाते का ये ताल्लुक़ था कि मरने वाले पर ये पैसे रखते थे, और वो पैसे जो जमा होते थे उससे मैयत की विधि करते थे देहातों में। ये इतना बड़ा मजमा यहाँ है। पहले कंपलसरी हमारे समाज का भी कायदा ये था, हाफिज साहब के टाइम में, हाफिज इस्माइल साहब अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे, कि ज़ियारत में हर घर में से एक आदमी का आना ज़रूरी और मैयत की विधि में एक आदमी का आना ज़रूरी। आज भी छोटी जमातों में जो छोटे छोटी
छोटी छोटी जमातें हैं, तो मैयत को आखिरी मंजिल तक पहुंचाने के लिए कुछ ज़ाब्ते और कानून मुआशरती होते हैं। इसी का नाम इस्लामी मुआशरा है, इसी का नाम इस्लामी समाज है। हदिया लेते देते रहना चाहिए, इसमें बहुत बड़ा फ़ायदा है, इससे मोहब्बत पैदा होती है। तो हज़रत सलमान ने ये पढ़ा था कि नबी हदिया कबूल कर लेता है, तो हदिया दी, आका ने कबूल कर लिया। अब एक बात तो पूरी हो गई। अब दूसरा, सदका पेश करते हैं तो कबूल करता नहीं अपनी ज़ात के लिए, क्योंकि नबी के लिए भी सदका हलाल नहीं और आले नबी के लिए भी सदका हलाल नहीं। जो सैयद बनु हाशिम हैं वो ज़कात सदका नहीं ले सकते, सैयद बनु हाशिम मना है। हजरत हुसैन या हसन में से किसी ने सदकी को कोई खजूर मुंह में डाल दी थी भूल से, आका ने देख लिया कि ये बच्चा है और बावजूद ये कि अभी छोटा है, उनको पता नहीं था। और सदके में क्या तमीज़ छोटे बच्चे को, और खजूर लालची चीज़ है, और अरब में खजूर ही वो चीज़ थी जैसे हमारे यहाँ चॉकलेट और गोली, ले लिया मुंह में डाल दिया। आका ने कहा कह कह निकाल निकाल, और यूं उंगली मुबारक दाखिल करके अंदर से वो निकाल करके फेंक दिया कि ये सदका है और हम आले रसूल के लिए सदका हलाल नहीं है। ये इससे ज़ाब्ते बने, ये ज़ाब्ते इस तौर पर शरीयत में बने। अल्लाह नबी और नबी के ख़ानदान से ये चूकें करवाता है और फिर अल्लाह हुक्म देता है। अगर हुसैन या अलकत अमल न करते तो फिर ये चीज़ सादिर न होती, इसलिए ख़ानदान नबूवत से ये चीज़ करवाई और करवा करके उम्मत को हुक्म दे दिया कि आले रसूल के लिए ये चीज़ हलाल नहीं है। सदका दिया, आका ने कबूल नहीं फरमाया, पहचान गए कि ये नबी है। दो बातें हो गई। अब तीसरी बात बहुत भारी थी। यहाँ दोनों मोंढों के बीच में कबूतरी के अंडे की तरह उभरी हुई चीज़ थी यहाँ, और इस पर लिखा था मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। मोहम्मद नीचे, इसके ऊपर रसूल, इसके ऊपर अल्लाह, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब वो कैसे पता चले? एक नववारिद आदमी है, वो आया हो, परदेसी आदमी अव्वलन, और आका के पास पहुंच जावे और यहाँ तक हाथ डाल दी, ये कैसे मुमकिन है? तो गुलामा ने मोहम्मद उसको बर्दाश्त भी थोड़ा कर सकते हैं कि नववारिद आदमी इस तरह आकर यहाँ तक हाथ पहुँचा दे। दो अलामतें तो मुतमईन हो गए। अब तीसरी अलामत, तो आका ने एक मरतबा आबा पहना था। आबा, आबा कहते हैं वो अरबी जुब्बा, लेकिन आज के मसनूई अरबी जुब्बे की तरह नहीं। वो आबा कैसा होता था? ऊपर से यहाँ सिलाई होती थी और एक सीधी सिलाई दोनों तरफ हो जाती थी, उसको ऊपर डाल देते थे, इसको आबा कहते हैं। तो वो खुला हुआ था, एकदम पोड़ा, और हवा की वजह से आका जब तशरीफ़ रखते थे तो हवा की वजह से हरकत हुई थी। अब सलमान फारसी वो आबा दुरुस्त करने की गर्ज से हाथ पहुंचा दिया यहाँ, तो उभरी हुई कबूतरी के अंडे की तरह कोई चीज़ थी जिसको महर नबूवत कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत सलमान फारसी ने हाथ पहुंचा दिया, अंदाज़ा हो गया तीनों अलामतें सही है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो हज़रत सलमान फारसी इस्लाम ले आए, इनका इस्लाम बहुत अच्छा रहा। तो वो 10,000 के लश्कर जर्रार ने जब चढ़ाई की तो सलमान ने मशवरा ये दिया था कि जब बिलाद रूम, बिलाद फारस पर हमलावर होते थे और मुकाबले की ताकत नहीं होती थी तो दरमियान में खाई खोद देते थे, 3 मील लंबी खाई और 10 से 15 फुट ऊंडी खाई, खाली 6 दिन में या 14 दिन में या 22 दिन में या 1 महीने में तैयार हो गई। और आका खुद खाई खोदते थे और फरमाते थे, हाँ देखिल हम्माल खैबर फगफिरिल अंसार वल मुहाजिरा। उस दरमियान आका के 2 बड़े मौजिज़े ज़ाहिर हुए थे। एक बहुत सख्त पत्थर मशवरा देने वाले सलमान के हिस्से में आया, वो किसी ताकत से टूटने के लिए तैयार नहीं। आका को बुलाया गया, आका ने एक फावड़ा मारा या कोदाल मारी तो वो रेजा रेजा हो गया
اور اس سے روشنی پھوٹی. آقا نے فرمایا شام فتح ہو گیا, روم فتح ہو گیا, فارس فتح ہو گیا. اب صحابہ کو سمجھ میں نہیں آیا, یہاں پتھر نہیں ٹوٹ رہا ہے اور یہ روشنی پر شام کی فتوحات, بصرہ کی فتوحات, عراق کی فتوحات, ایران کی فتوحات. واقعی نبی جو دیکھتا ہے وہ عام انسان نہیں دیکھ سکتا ہے. اور یہی سب کچھ ہو گیا جو آقا نے فرمایا تھا. حضرت سلمان آقا خود کام کرتے تھے, اس پر میں نے یہ پورا قصہ دہرایا. صحابہ نے شکایت کہ اللہ کے نبی اب بہت برداشت کی حد ہو گئی, 3 دن گزر گئے, کچھ بھی کھانا پینا ملا نہیں, اور دیکھو پیٹ چوٹ گیا ہے کمر سے, اور اب تو پیٹ پر بھی پتھر باندھ لیا ہے. یہ حقیقت میں ہوا ہے, یہ حقیقت کا قصہ ہے. آقا نے پیران مبارک اونچا کر دیا اور آقا کے پیٹ کے اوپر جب دیکھا تو 2 پتھر باندھے ہوئے تھے. حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری نے دیکھا تو حضرت جابر گھر گئے. ایک سیر آٹا تھا جو کا, ایک سیر جو تھے. جلدی جلدی چکی چلائیں اور جو پیسے. اور اس زمانے میں چھلنیاں نہیں تھی, صحابہ کے زمانے میں لوٹ چاڑوانی چاڑنی نوتی. صحابہ خود فرماتے ہیں ہمارے زمانے میں چھلنیاں نہیں تھی. اور جو جانتے ہیں پورو گھؤں کھیتر ہوئے, گھؤں نے لنگر برابر پاکی گئی ہوئے نے بدی سی اونچی اونچی لنگر ہوئے نے انہیں جو کہوائے کہ جس میں گودا کم ہوتا ہے, یعنی اناج کم ہوتا ہے, بوس زیادہ ہوتا ہے, اور اس کا چھلکا بھی انتہائی خطرناک ہوتا ہے. وہ جو تھے. جو کیا کرتے تھے, چھلنی نہیں تھی تو آٹا کیسے چاڑتے تھے, تو وہ ہاتھ گھرگھنٹی کے اندر اس کو پیس لیتے تھے, پھر کھوبے میں لیتے تھے اور یوں کر کے پھوک مار کر کے کچرا اڑا دیتے تھے. جو کچرا ہوتا تھا اڑ جاتا تھا اور باقی کا ٹیپ کر کے روٹی بنا لیتے تھے. اور ایک بکری کا بچہ تھا, ذبح کر دیا. بیوی سے کہا, خود بکری کا بچہ ذبح کر کے گوشت تیار کر کے گئے. بیوی پکانے لگی, آٹا باٹا تیار کر دیا. پھر کہا کہ دیکھو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر آتا ہوں. جابر نے کہہ دیا آپ اور آپ کے ساتھ چند صحابہ. ایک شیر میرے پاس جو تھا اور ایک بکری کا بچہ ہے. آپ کی بھوک کو دیکھ کر, پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئی حالت کو دیکھ کر مجھ سے دیکھا نہیں گیا. جب میرے گھر میں اتنا تھا وہ میں نے تیار کیا ہے, اور لمٹ اتنے آدمیوں کی ہے, 5-10 آدمیوں کی, اور 5-10 متعین نہیں کی, اتنا کھانا ہے. آقا نے اعلان کر دیا یا اہل خندق, 3000 صحابہ تھے. اے خندق والو چلو چلو جابر کے گھر کھانے کی دعوت. اب جابر پہنچے, پریشان پسینے سے سرابور. یہ تو 3000, آج تو میری گد بن جائے گی. دعوت میں کھانا گھٹ جاوے تو جس نے کاج مانڈا ہو وہ جان سکتا ہے کہ کیا حالت بنتی ہے. بچے تو بہت اچھا, گھٹے تو مشکل, کیونکہ لوگوں کی زبانوں کے تانے زندگی بھر بلکہ نسلیں تک یاد کرتی کہ انہیں کاج میں کھاؤ گھٹو تو. یہ ایک سلسلہ ہے, ذلتی ہوتی ہے. تو حضرت جابر تو پسینے سے سرابور. اب بیوی نے دیکھا کہ غبار اٹھ رہا ہے, وہ لشکر جرار جابر کے گھر آ رہا ہے. آقا آگے آگے, تو بیوی بہت پشیمان کہ تو نے تو مجھے رسوا کر دیا, ذلیل کر دیا. 5-10 آدمی کا کھانا نے 3000. عورت کی عادت ہوتی ہے مہمان بڑھ جاوے تو معاشرے میں بولا. لیکن بیوی صحابیہ تھی. اللہ اکبر. بہت نکتے کی بات ماؤں بہنوں کے لیے. پہلا سوال کیا کرتی ہے, جابر تو نے نبی جی کو کیفیت نہیں بتائی تھی کہ اتنا کھانا ہے؟ بتایا تھا کہ نہیں؟ تو کہاں بتا دیا تھا. تو کہ کوئی حرج کی بات نہیں, جب بتا دیا تھا نے, اب اللہ جانے نے نبی جانے, میرا کوئی مسئلہ نہیں. اس کو صحابیہ کہتے ہیں. جو نبی پر ایمان لانے والی خاتون اسے کہا جاتا ہے. آج ہمارے اور ان کے ایمان میں اتنا بڑا فرق ہے. کیفیت بتا دی, مسئلہ ختم ہو گیا. آقا نے فرمایا جابر سالن کی ہانڈی مت کھولیو, اور آٹا گوندنے کے لیے تیار کر دیا ہے, روٹی بنانا شروع مت کریو, میں آتا ہوں. آپ تشریف لے آئے اور لعاب مبارک نکالا, اور نکال کر سالن میں ڈالا اور آٹے میں ڈالا, اور فرمایا
लाओ हांडी मेरे पास। और नबी ने निकाला, एक चीज़ प्लेट के अंदर रोटी रखी, एक और रोटी के अंदर सालन रखा, एक लुआब मुबारक, आका का थूक, नबी के थूक को थूक कहना बेअदबी है, इसलिए लुआब कहते हैं, लुआब मुबारक। अब नबी का लुआब मुबारक 3000 सहाबा के पेट में जा रहा है, तो वो 3000 सहाबा का क्या ऊंचा मकाम होगा। और जिसके पेट में मखलूक के किसी भी जिस्म के हिस्से में नबी का कोई जूस चला गया, उस पर जहन्नम हराम है। इस पर हमारा ईमान है। नबी का कोई जूस किसी के पेट में चला गया, उस पर जहन्नम हराम। एक सहाबिया खातून ने अल्लाह के नबी के मरज के ज़माने में, बीमारी के ज़माने में पेशाब पी लिया था, जो आका ने कारूरा में रखा था। एक सहाबिया खातून ने, बल्कि एक सहाबी ने उहुद के अंदर आपके पेशानी मुबारक से निकलने वाले खून को चूस लिया था। और अल्लाह ने फरमाया, आका ने फरमाया, अल्लाह के इज़्ज़त की कसम, अल्लाह के जलाल की कसम, अल्लाह के उलूव मर्तबे की कसम, हदीस कुदसी में अल्लाह फरमाता है, ये सहाबी के पेट में जाने के बजाय ये खून अगर मोहम्मद की पेशानी से छूट करके ज़मीन पर गिर जाता, मेरी इज़्ज़त की कसम, मेरे उलूव मर्तबे की कसम, मेरे अज़मत शान की कसम, क़यामत तक रूए ज़मीन पर एक घास का कतरा भी न उगता। ये नबी को अल्लाह ने मकाम दिया था। लेकिन ओहद में दुश्मनों ने अब्दुल्ला इब्न कीमिया ने तीर मारा था, जिससे खोद टूट चुकी थी। खोद कहते हैं लड़ाई की टोपी को, और बख्तर पूरा लोहे का होता है। आका ने उहुद में खोद पहनी थी, वो टूट करके कड़ी अंदर चली गई और निकलती नहीं थी। एक सहाबी ने अपनी डांड से खींच करके निकाला तो खून फूट पड़ा। मदीने में इत्तला हुई, फातिमा और सहाबिया सहाबा दौड़े दौड़े तशरीफ ले आए। अली पानी डाल रहे हैं, फातिमा धो रही है, लेकिन खून बंद नहीं होता है। सैयदा फातिमा ने चटाई जलाई और उसकी राख ली और आका का खून बंद करने के लिए राख भरी। उससे पहले वो खून चूसा गया। अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरी इज्जत की कसम, मेरे उलूब मर्तबे की कसम, मेरे अल्लाह होने की कसम, अगर ये ज़मीन पर गिर जाता, क़यामत तक एक कतरा भी जो है घास का मैं रूए ज़मीन पर न उगाता। ये अल्लाह ताला का निज़ाम है। तो हज़रत सलमान फारसी बहुत बड़े दर्जे के सहाबी रसूल थे, बहुत बड़े दर्जे के। उहुद के अंदर आका का गाल चीर दिया गया था, आपके दंदाने मुबारक रुबाई शहीद हुए थे। और वैसे करनी मशहूर ताबाई है, अपनी माँ की खिदमत की वजह से सहाबी के शर्फ से महरूम रहे। आका ने फरमा दिया था, तेरी माँ की खिदमत कर, तुझे यहाँ आने की ज़रूरत नहीं। और माँ की वफ़ात तक आका दुनिया से तशरीफ़ ले गए, सहाबी के शर्फ से महरूम रहे। लेकिन पता चला कि उहुद में नबी के रुबाई दांत टूटे थे। और वैसे करनी ने 32 दांत तोड़ दिए थे कि मेरे नबी का दांत टूट गया है और मैं मेरे दांत बाकी रखूं। और वैसे करनी ही वो कर सकता है, हमा शुमा की ये ताकत की बाहर की बात है। तो वो 3 चीज़ें, नबी हदिया कबूल करेगा, नबी सदका रद्द कर देगा, और मोंढे के बीच में मेहर नबूवत है जिस पर लिखा हुआ था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तीनों अलामतें पहचान ली। हजरत सलमान इस्लाम ले आए। वो जाबिर की दावत की बात थी। आपका लुआब मुबारक डाल दिया, आप अपने दस्ते मुबारक में रोटी ले रहे हैं और रोटी पर सालन डालते हैं और एक एक को तकसीम करते हैं। रोटी ही प्लेट थी, रोटी के अंदर सालन रख कर तकसीम, रोटी के अंदर सालन रख कर के तकसीम। अव्वल से आखिर तक सब शिकम शेर हो कर के खा लिए। 3 दिन के भूखे और पेट पर पत्थर बांधे हुए, तो वो भूख का आलम क्या होगा। और खंदक खोदे जा रहे हैं, आज भी वो खंदक मदीना के गर्दो नवा में मौजूद है। आज तक वो खंदक के निशानात मौजूद हैं, जो बातिल के 10,000 लश्कर जर्रार के मुकाबले में 3,000 की फौज ने जो मुकाबला किया। और वो खंदक का दिन अली का दिन था। हजरत सलमान के मशवरे से ये खंदक खोदी गई थी और दुश्मनान इस्लाम से बचाव और हिफाजत हुई थी। खैर, मुझे तो आका के बुनियादी 3 हक़ बयान करने थे। एक, हमारे नबी की अज़मत दिल में बिठाई जाए, एक मोहब्बत दिल में बिठाई जाए, और एक ताबेदारी। इसको सीरत कहते हैं, सीरत। इसका पढ़ना चाहिए,
इसको घर में किताबी शक्ल में बैठ करके भी वांचना चाहिए। आजकल का जवान माशरे में मोबाइल की नज़र हो गया। रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे घर के बाहर ओटले पर अब कभी निकल जाओ तो वो घर में सोता नहीं है। अब तो लंबी रातें हैं और कहता है कटती नहीं हैं। हालांकि मेरे बुजुर्गों, इशा की नमाज के बाद 1-2 घंटे अपने मामूलात से फारिग होकर आदमी सो गया, से पहर में उठ गया। आका ने फरमाया शिताउ गनीमतुल मोमिन ताल लैलुहु फक़ामा व कसुर नहारुहु फसामा। सर्दी का सीज़न मुसलमान के लिए गनीमत का सीज़न है। रात बहुत लंबी, कितना सोएगा। आखिर शब में उठ करके तहज्जुद पढ़ ले। दिन छोटे छोटे हैं, रोज़ा रख ले। तो सर्दियों का सीज़न गनीमत का सीज़न है। दिन छोटे हैं, रोज़े की सीज़न है ये, और रात लंबी है, तहज्जुद की सीज़न है। तहज्जुद भी आसान है, रोज़ा भी आसान है, और ठंडक की वजह से भूख का भी एहसास नहीं होगा। अश्शिताउ गनीमतुल मोमिन ताल लैलुहु फक़ाबा फ़कसुर नहारुहु फसामा। ज़रूरत के बक़दर चीज़ों का इस्तेमाल जायज़ है। वगर ज़रूरत चीज़ों का इस्तेमाल जिसमें 90 नहीं 95% गलत बातें होती है या 98% खोटी बातें होती है, 1-2% सही बात। पहले इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया था, इलेक्ट्रॉनिक था नहीं, तो छापा छापते थे, तो उस छापे के अंदर झूठ ही झूठ होता था और उसमें सच तलाश करना पड़ता था। इसलिए एक बड़े बुजुर्ग ने किसी अपने मुरीद को देखा कि छापा लगता है, बुजुर्ग का गुजर हुआ, का क्या करते हो? वो भी अच्छे थे, तो इन्होंने कहा कि झूठ में से सच तलाश करता हूँ, कि कितना झूठ, ये पूरा झूठा छापा हुआ है, उसमें से सच में तलाश करता हूँ। वो भी बड़े नेक आदमी थे कि झूठ में सच क्या है। और इलेक्ट्रॉनिक जब प्रिंट मीडिया का ये हाल था, जबकि लिखी हुई चीज़ पर जिम्मेदारी होती है, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तो कोई जिम्मेदारी नहीं, इसमें 98% झूठ होता है। और सच वो है जो नबी ने बताया, सच वो है जो शरीयत ने बताया। ताका के बुनियादी 3 हक है। एक, नबी की मोहब्बत दिल में रखी जाए, नबी की अज़मत दिल में पैदा की जाए, और नबी की ताबेदारी वाली ज़िंदगी गुजारी जाए। सोमवार को बंद रखने का ऐलान हुआ कि भाई हम लोग बंद रखेंगे अपने धंधे, व्यापार, कारोबार, दुकानें, तो करेंगे क्या? सारी बातें मशवरे में आती है। तो भाई करेंगे, हम मामूलात की पाबंदी करेंगे, इत्तिबाए सुन्नत करेंगे। भाई क्यों बंद रखा? कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई। एक मसला बहुत खुल करके समझो, नबी हयात है, वो मरता नहीं है, मुंतकिल होता है, एक जगह से दूसरी जगह घूमता है, इंतकाल करता है, पलटता है, बदलता है। दुनिया से पलटकर आखिरत की पहली मंजिल में कब्र में, कब्र की मिट्टी को अल्लाह ने ये हराम कर दिया है कि वो नबी का जिस्म नहीं खा सकते। ये मिट्टी भी अल्लाह के हुक्म के ताबे हैं। भले हम खेड़ते हैं, हम इस पर सातिर चलावे, ढूंढा तो भी कुछ नहीं बोलती, बेला चलावे तो भी कुछ नहीं बोलती, समार चलावे तो भी कुछ नहीं बोलती, लेकिन ताबे तो अल्लाह के हैं। अल्लाह जो करेगा वही होगा। अल्लाह जिसकी बॉडी सड़ाना चाहे उसकी सड़ाएगी। अपनी मर्जी से ज़मीन किसी की बॉडी नहीं सड़ा सकती, और अल्लाह ने इसको हराम कर दिया है। ये भी मुकल्लफ है, ये भी अल्लाह की ताबेदार है। उसको अल्लाह ने ये फ़र्ज़ किया है कि देखो, नबी के जिस्म को कब्र की मिट्टी नहीं खा सकती, और आका हयात है। और हयात जानते हैं, हर सोमवार को और हर जुमेरात को उम्मती के आमाल पेश होते हैं। ये आपका उम्मती है, ये हमारी चीज़ें पेश होती है। हर सोमवार को, हर जुमेरात को आका के सामने कारगुजारी जाती है। और किन की जाती है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वाले हैं, उनकी नहीं जाती। जो एरे गहरे नत्थु खैरे हैं, इनकी नहीं जाती। हम उम्मते इजाबत है, वो उम्मते दावत है, वो भी नबी ही के हैं। हम में और इनमें फ़र्क ये है, वो भी हमारे नबी ही की उम्मत है, जैसे हम हमारे नबी की उम्मत है। अलबत्ता फ़र्क इतना है, एक उम्मत ने बात को कबूल कर लिया,
एक उम्मत तक बात पहुंचाने की जिम्मेदारी है। ये तो वो भी नबी जी की उम्मत, जैसे हम नबी जी की उम्मत हैं, हम उम्मत इजाबत हैं, वो उम्मत दावत हैं, उन तक कलमा पहुंचाने की जिम्मेदारी कलमा कबूल करने वालों की है, लेकिन उनके अमाल पेश नहीं होते। इसलिए हजरत शेख अल बशाइख मौलाना मोहम्मद यूनुस साहब जौनपुरी नव्वर अल्लाह मरकदहू ने फरमाया कि नबी की शान में कोई कितनी ही गुस्ताखी करे और नबी के बाबत कोई कितना भी बोले तो उसके बोल से नबी को कोई तकलीफ नहीं होती है, कोई तकलीफ नहीं। ज़ाते अक़दस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र अतहर में कोई तकलीफ नहीं, वो तो जन्नत है। तो क्या जन्नत में भी इन गुस्ताखों की चलती है? वो अगर सड़ियाँ करे तो उनकी सड़ियों का असर जन्नत में भी हो सकता है, जबकि नबी जन्नत में है। और नबी जिस ज़मीन में वफात पाता है वो जन्नत की ज़मीन होती है। हमारे नबी जी जिस ज़मीन में आराम फरमाते हैं वो रियाजुल जन्ना है, और नबी हयात है, और कब्र अतहर के अंदर आमाल पेश होते हैं। बल्कि आका ने फरमाया जो मुझ पर मेरी कब्र पर हाजिर होकर दुरूद पढ़ता है, सलाम पढ़ता है, मैं उसको सुनता हूँ और जवाब देता हूँ, और जो दूर से पढ़ता है वो मुझ पर पहुँचाया जाता है फरिश्तों की मारिफत, और जो मेरे पास आकर के पढ़ता है वो दुरूद और सलाम को मैं सुनता हूँ। और एक मरतबा ये पढ़ेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पढ़ने वाले पर आसमान से फरिश्ते 70 रहमतों को लेकर उतरते हैं। एक अमल पर 70 फायदे। खाली मैंने पढ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कसम खुदाए ताला की मुझ पर 170 खाली 70 अल्लाह की रहमतें उतर चुकी। इसीलिए फरमाते हैं मन सल्ला अलैहि सलातन वाहिदा सल्लल्लाहु अलैहि अशरा। एक मरतबा दुरूद पढ़ा 10 रहमतें उतर गई, 10 मरतबा पढ़ा 100 रहमतें उतर गई, 100 मरतबा पढ़ लिया, यहाँ पेशानी पर लिख दिया गया यह आदमी मुनाफिक होने से पाक है, यह आदमी जहन्नमी होने से पाक है। कितनी बड़ी फजीलत। और आगे आका यूँ फरमाते हैं मैं इसके लिए सिफारिश करूँगा, और आका यूँ फरमाते हैं मैं इसके लिए गवाह बनूँगा। और दूसरी एक हदीस में यह है कि इतना कर लेने वाला मरने के बाद इसका हश्र शहीदों के साथ होगा। तो शहादा जहाँ जमा होंगे देखेंगे ये तो किसी मारिके में लड़ा भी नहीं, इसने तो जान की बाजी लगाई भी नहीं, ये तो शहीद भी नहीं हुआ। शहादत कोई मामूली अमल थोड़ा है। वो तो हज़रत हमज़ा से पूछो, वो तो मुसाब इब्ने उमैर से पूछो, वो तो यमान से पूछो। अजीब, मुसाब इब्ने उमैर इस ऊंचे दर्जे का इंसान था, नाज़ो नेमत दौलत और सरवत में पला हुआ इंसान। इस्लाम से पहले हर दिन नया कपड़ा, हर रोज नई खुशबू। एक मर्तबा एक की तरह इस्तेमाल हो गया, दूसरी मर्तबा नहीं। इनके नखरे कैसे थे, अजीब लिबास फाखिरा और हुस्न खूबसूरती में अल्लाह के नबी के जैसे, यानी बेआईनगी तो नहीं, यानी खूबसूरत बहुत, हुलिया ढांचा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे। अब इसमें क्या घट सकता है जब ज़ाहिरी हुलिया ऐसा, और दौलत का हाल ये है रोज़ाना नया कपड़ा। हमारे अकाबिरीन में से हज़रत गंगोही नव्वर अल्लाह मरकदहू हर रोज़ नया कपड़ा पहनते थे, और हज़रत थानवी का हाल ये था कि 2 जोड़ी में साल गुजार देते थे, और वो भी कितने थिगड़े और कितने उसमें जो है सांधे होते थे। तो लोग जाहिर को देख करके कहते हैं बहुत बड़ा बुजुर्ग है, चमक दमक, इमामा, लंबा कुर्ता, हाथ में तस्बीह। लेकिन जाहिर पर मसला, अगरचे जाहिर को अच्छा बनाना भी ज़रूरी, लेकिन मसला उस पर है, दिल पर है। सारी दौलतों का ढेर हो और दिल में तवाज़ु हो, कोई बात नहीं। और फ़कीर हो, गदा और तकब्बुर जमा हो जावे तो ये जहन्नमी है। एक तक फ़कीर भी है और दूसरी तरफ तकब्बुर भी करता है। मुसाब इब्ने उमैर इस्लाम से पहले दौलतों में, नाज़ो नखरों में, नेमतों में पले हुए थे। अल्लाह अकबर। जब इस्लाम ले आए उहुद में शहीद हुए, अहद में शहीद हुए। इनको याद करके सहाबा लंबे ज़माने तक रोते रहे। मुसाब इब्ने उमैर
जब उहुद में शहीद हुए तो शहादत के बाद नाक काटा गया, कान काटा गया, गाल चीरा गया, जैसे हजरत हमजा अकेले का नहीं, 70 सहाबा का मुसला हुआ था, या 20 सहाबा का नाक कान काटे गए थे। हजरत हमजा का तो सीना चाक करके कलेजा निकाल करके चबाया गया था, लेकिन अल्लाह है, सीना चाबने वाली औरत को भी अल्लाह इस्लाम की तौफीक दे करके उसको मुसलमान बनाकर जन्नत दे देता है। इसको अल्लाह कहते हैं, इसकी हिकमत को कोई नहीं समझ सकता है। खैर, तो मुसाब इब्न उमैर नाज़ो नेमत में पला हुआ इंसान, दौलत के अंबार और ढेर, लेकिन जब उहुद में शहीद हुआ, आका ने एक एक कब्र में 3-3, 4-4, 5-5 दफनाए, और जिसको कुरान जितना ज़्यादा याद उसको पहले ये इमाम, फिर इसके बाद दूसरा, फिर इसके बाद दूसरा, इससे कम दूसरे को याद है तो दूसरी कब्र में, उससे कम है तो इसको तीसरे नंबर में, और एक कफन में बसा हुआ 2। मुसाब इब्न उमैर इस्लाम से पहले के वो हालात। और जब उहुद में शहीद हुए, एक चादर थी, एक मर्द के कफन के 3 कपड़े हैं, एक चादर, सर ढांकते थे, पैर खुल जाते थे, पैर ढांकते थे, सर खुल जाते थे। आका ने फरमाया सर ढांक दो, ये मोहतरम चीज़ है, ये प्यारी चीज़ है, इसकी इज्जत की जाती है, इसलिए फरमाया चेहरे पर मत मारो और पीठ पर मत मारो, चेहरे पर मत मारो, ये शरीफ उज़्व है, इसलिए कि पेशानी मालिक के दरबार में रगड़ी जाती है, और जो पेशानी मालिक के दरबार में रगड़ी जाए वो किसी इंसान का मार खाने के लिए नहीं है। और पीठ पर मत मारो, इसलिए कि जहन्नमियों को फरिश्ते डंडे से हाँकेंगे तो पीठ पर मारेंगे, ये जहन्नमियों की मार है। इस्लाम की तालीम तो देखो, उसके ज़ाब्ते और उसूल तो देखो, मार मारी जाए और उसमें भी रियायत, न चेहरे पर मार सकता है न पीठ पर मार सकता है। अल्लाह अकबर। आका ने फरमाया चेहरे पर कपड़ा डालो, यानी चेहरे पर कफन ले लो, और इज़खीर घास, इज़खीर घास क्या होता है? एक खुशबूदार घास अरब में होता था जो खुद ब खुद उगता था, जैसे खड़ उग जाता है, लेकिन इसमें खुशबू आती थी। हरम की सारी चीज़ें हराम है, उसका घास उखेड़ा नहीं जाएगा, वहाँ का दरख्त काटा नहीं जाता है, इंसानों ने बोया है उसको काट सकते हैं, लेकिन इंसानों ने बोया है और वो दरख्त है जो कुदरती तौर पर भी उग जाता है तो भी नहीं काट सकते। अजीब, कैसा अल्लाह ने हरम बनाया, इंसानों ने बोया लेकिन कुदरती खुदरऊ में से है तो भी नहीं काट सकता, और कोई घास नहीं काट सकता। हाँ, सूख गया हो, कट गया हो, जल गया हो, इसको उखेड़ सकते हैं, हरे घास को नहीं काट सकते। और ऐसे भी हरम के अलावा हिल में भी वगर ज़रूरत लीलू झाड़ ना कापी शकाय। ये कुछ हिंदुस्तान का कायदा थोड़ा है, ये इस्लाम का ज़ाब्ता है। क्यों भाई? कि वगर ज़रूरत लीलू झाड़ कापवा थी, ये तस्बीह पढ़ता है, ये नारियली तस्बीह पढ़ती है, ये लीला लीला पत्ता तस्बीह पढ़ता है। अगरचे हमारे कान ने सुनी नहीं, लेकिन नबी ने खबर दी है, कानों का सुना हुआ नबी का खबर दिया हुआ आला और औला है, और कानों का सुना हुआ गलत हो सकता है लेकिन नबी की खबर गलत नहीं हो सकती। ये तस्बीह पढ़ता है। सफ़ेद कपड़ा जब तक मेला नहीं होता तब तक तस्बीह पढ़ता है। चलता पानी धोरिये में, नदी में, तालाब में, समंदर में तस्बीह पढ़ता है। इसलिए चलते पानी में जो पेशाब करे उस पर अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत, इंसानों की लानत। सरकारी जगहों में, शाहराह में दरख्त लगाए जाते हैं, उसके नीचे अगर कोई पाखाना कर ले उस पर अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत, इंसानों की लानत। ठहरे हुए पानी में कोई पेशाब कर ले थोड़ा ही, उस पर अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत, तमाम इंसानों की लानत। अरे कोई प्यासा गुजरने वाला पिएगा, अरे जानवर ही पिएगा, अरे किसी को वुजू की ज़रूरत है तो वुजू ही करेगा। एक ताहिर चीज़ को नजिस क्यों करते हो? एक पाक चीज़ को नापाक क्यों करते हो? मना है इस्लाम में। कैसी बारीक तालीमात है। वो तालीमात कहाँ से आई? कल्बे अतहर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। आपके कल्बे अतहर से ये पास हुआ। 10 लाख हदीसें हैं, 10 लाख। इसको पढ़ते पढ़ते ज़िंदगी पूरी हो जाए, खाली पढ़ते पढ़ते। फिर इसके मानी और मतालिब, फिर उससे इज्तिहाद और इस्तिंबात अहकाम, बहुत बड़ी चीज़।
تو نبی کا بنیادی حق یہ ہے کہ آپ سے محبت رکھی جائے، آپ کی عظمت، آپ کی تابعداری، آپ پر کثرت سے درود پڑھا جائے۔ اب نبی کی محبت پیدا کرنے والا عمل کیا ہے؟ نبی کی عظمت پیدا کرنے والا عمل کیا ہے؟ اور نبی کی تابعداری پر کون سی چیز آدمی کو ابھارے گی؟ وہ درود کی کثرت، وہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اب درود شریف، درود ابراہیمی ہر ایک کو یاد ہوتا ہے۔ چھوٹے میں چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وسلم، چھوٹے میں چھوٹا درود اور سلام، چھوٹے میں چھوٹا درود اللہم صلی علی محمد، اور چھوٹے میں چھوٹا درود اور سلام صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی کو خواب میں دیکھنا ہے، وضو کے ساتھ یا غسل کر لے، تمام تر حجامتوں سے فارغ ہو جائے، سے پہر کا وقت ہو، قبلہ رخ ہو، مسجد ہو یا گھر کی مسجد، یعنی گھر میں جو نماز کی جگہ ہے، 1000 مرتبہ پڑھ لے اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح وصلی علی جسد محمد فی الاجساد وصلی علی قبر محمد فی القبور۔ یا دوسرا درود اللہم صلی علی محمد کما امرتنا ان نصلی علیہ، اللہم صلی علی محمد کما هو اہلہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ، 1000 مرتبہ۔ دونوں میں سے ایک انشاءاللہ العزیز اس کو اللہ کے نبی کا دیدار نصیب ہو جائے گا۔ اور جس نے نبی کو دیکھا اس نے نبی ہی کو دیکھا۔ شیطان ہر ایک کی صورت بنا سکتا ہے، نبی کی صورت نہیں بنا سکتا۔ خیر، ذات اقدس رسول کی عظمت پر بہت لمبی بات ہے، پوری سیرت کی کتابیں اس سے بری پڑی۔ تو بن کے دن عام طور پر ہوتا ہے یہ کہ معمولات میں لگے رہیں، کوئی سودا بودا کسی سے خریدنا نہیں ہوتا ہے۔ خیر، ذات اقدس رسول کو اس سے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ جو بولے گا اس کا منہ کالا ہوگا، اس کے اندر کا باطن خبیث ہوگا، جس کو وہ اپنی زبان میں لے آتا ہے۔ جیسا انسان ویسا اس کا ضمیر، اندر میں جو ہوتا ہے وہ زبان باہر کرتی ہے۔ جیسے چہرہ چگل خور ہے، ایسے ہی زبان قلبی احساسات کو باہر لے آتا ہے۔ اندر میں غصہ ہے، زبان سے ڈکلیئر ہوگا۔ اندر میں محبت اور رحمت کے کلمے ہیں، زبان سے صادر ہوں گے۔ تو فرانس میں یہ غلطی کی کہ بھائی آقا کا کارٹون بنایا، اللہ کے نبی کا شبیہ بنانا حرام ہے۔ اگر مسلمان یہ عمل کرتا ہے کافر بن جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کی شان میں ادنا گستاخی جائز نہیں۔ پھر اس کی سزا ہو گئی، قتل کر دیا، مسئلہ ختم۔ اور جس نے قتل کر دیا تھا اس مسلمان شہید کو بھی جام شہادت نوش فرما لیا۔ ان کا جو درجہ ہوگا وہ تو اللہ کا نبی، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ نبی کے ساتھ حشر فرمائیں گے۔ لیکن گستاخی سے تکلیف ہوتی ہے۔ ہمارے مقتدی اللہ کی سب سے بڑی بزرگ نشانی، ذات اقدس رسول کو کوئی تکلیف پہنچائے تو ٹھیس پہنچنی چاہیے۔ ادنا درجے کے مسلمان کو مشرق میں کسی نے تکلیف پہنچائی اور مغرب میں پتہ چلا تو اس کو تکلیف ہونی چاہیے، تو مسلمان ہے۔ اور اگر ذرہ برابر بھی تکلیف نہ پہنچے تو وہ مسلمان نہیں ہے، ایک مسلمان۔ تو نبی کا حل، لیکن ہمیں جس دیش میں رہتے ہیں اور قرآن اور سنت کے آئین اور قانون کو دیکھ کر اظہار افسوس کرنا چاہیے۔ یہ بھی کوئی شرعی ضابطہ نہیں ہے، جو ہم کر رہے ہیں وہ شرعی ضابطہ نہیں ہے، لیکن جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک میں رہتے ہوئے دوسری قوموں کے درمیان میں تعصب اور افسوس کے اظہار کے یہ مواقع ہیں، اس لیے ہم اس طور پر کرتے ہیں۔ ورنہ اصل کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی کی سنتوں کے اتباع کی قسمیں کھانی چاہیے، اطاعت رسول کے لیے عہد کرنے چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے انہی 3 باتوں پر لمبی گفتگو کرنی تھی، لیکن نہ معلوم اور مضامین دوسرے حدیث کے تازہ پڑھائے ہوئے آپ کی خدمت میں پیش کر دیے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کی جہاں کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے، ان کے قبر کو نور سے بھر دے، ان کی روح کو الیگن میں داخل فرمائے، انہیں جنت الفردوس کے بلند درجات عطا فرمائے۔ چونکہ ابھی میرا ایک سبق پڑھانا بخاری شریف کا باقی ہے، اس لیے میں نے مختصر آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات پیش کی ہے۔ اس کے بعد ابھی 45 منٹ اور حدیث پڑھانی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ 1 مرتبہ درود شریف، 3 مرتبہ قل هو اللہ احد، آخر میں 1 مرتبہ درود شریف۔ عالم کے مرحومین مسلمین کی نیت کرو کہ عالم کے جتنے بھی لوگ اللہ کی رحمت میں چلے گئے ہیں ان سب کو میں یہ وظیفہ بخشتا ہوں۔ یہ نیت کر کے پڑھ لو، آپ کا وظیفہ پورا ہوتے ہی ان کی قبر میں 1 قرآن جائے گا۔
تو اعلان بیت المال کی طرف سے سارے ذمہ دار ادارے संस्थाएं علماء یہ ہیں کہ سوموار کے دن صبح سے لے کر 5 بجے تک بازاریں ہر طرح کی بند رہے گی، لیکن کسی مسلمان نے بھی دکان کیبن کھلی رکھی ہے تو کسی کو حق نہیں ہے کہ اس کو بند کرائے، غیر مسلم کی تو دور کی بات۔ ہمیں دوسری جگہ کوئی ایریے میں جا کر کے کہیں سودا خریدنا نہیں ہے اس دن، بلکہ ہم کوشش یہ کریں گے کہ معمولات میں وقت گزاریں گے۔ کھیتی باڑی والے تو اپنے کام میں رہتے ہیں، یہ بازاروں کے مسائل ہیں۔ نوجوانان قوم ملت عام طور پر یہ سوچتے ہیں چلو ادھر دیکھ کر آوے وہاں بند ہے کہ نہیں، یہ سب ہمارا کام نہیں۔ ہم نبی کی نسبت سے یہ کام کرتے ہیں تو وہ کوئی حرکت نہیں کرنی چاہیے کہ جو نبی کو تکلیف پہنچائے۔ ان کی باتوں سے تو نبی کو تکلیف نہیں پہنچے گی، ہم کوئی ایسی حرکت نہ کر بیٹھیں کہ جس سے ہم نبی کو تکلیف پہنچانے کا باعث بن جائے۔ اس لیے ذمہ داری بڑھے گی ہماری کہ ہم سے کوئی ایسا عمل صادر نہ ہو جائے جس سے ہمارے نبی کو تکلیف پہنچے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اے اللہ ہم تمام کو کائنات میں بسنے والے انسانیت کو ہدایت نصیب فرما، گمراہی سے حفاظت فرما، آپ کے معرفت کا نور عطا فرما، آپ کے ذات عالی سے تعلق عطا فرما، کامل ایمان عطا فرما، خشیت و تقوی نصیب فرما۔ اے اللہ ارحم الراحمین، مرحوم کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما، ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کی روح کو لیگن میں داخل فرما دے، انہیں جنت الفردوس کے بلند درجات عطا فرما دے۔ اے اللہ یہ خاندان پہلے ہی سے جن میں ایک بزرگ تھے بیکا بھائی گاجریا جو اصلاح بین الناس کے بہت زبردست کام کیا کرتے تھے، جن سے ہمیں اور ہمیں ان سے بڑی محبتیں تھیں۔ اس خاندان کے ایک بزرگ کا یہ کردار رہا ہے کہ لوگوں کے درمیان میں سمادھان کے لیے زندگی کا بہت بڑا وقت نیکی کے کام میں ان کا گزرا ہے۔ تقریباً انہی کے خاندان کی یہ اولاد ہوگی۔ اے اللہ آگے جانے والوں کے نیک اعمال یاد کیے جاتے ہیں۔ اصلاح بین الناس کا کام کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ بہت اچھے صفات کے انسان تھے، بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن مروت والے انسان تھے جو تیری جوار رحمت میں چلے گئے۔ اس خاندان کا یہ فرد بھی تیری جوار رحمت میں آیا، نہ معلوم ہمارا حال کیا ہوگا۔ اللہ عزت کی موت عطا فرمائے، ایمان کی موت دیجیے، حسن خاتمہ نصیب فرمائیو، بری اچانک کے حادثات کی غفلت کی جہالت کی موت سے حفاظت فرمائیو۔ اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت عطا فرما، محبت عطا فرما، تابعداری والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ بہت مقدس مجمع ہے، بہت عظمت کے ساتھ تیرے نبی جی کی محبت میں بات سنی ہے۔ اے اللہ اس مجلس کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے، ہم زندوں کی نجات کا ذریعہ بنا دے، ہماری مغفرت کا سامان بنا دے، ہم سب کا ایمان پر حسن خاتمہ نصیب فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم پیارے آقا کے حسنات کے صدقے تو فعل میں قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وصحبہ وبارک وسلم برحمتک یا ارحم اللہ۔